آپ کو یہاں تک کہ میر دیوان سکاک کا پتہ ہوتا ہے؟ میر دیوان سکاک اسے کہتے ہیں جو سیڑھیوں والی گلی ہوتی ہے، پہاڑی سے ایسے سیڑھی اتر رہی ہے وہ بھی گلی کی نہیں جاتی۔ ایک پٹھان تھا ادھر، وہ تو کہہ رہا تھا میں نے کیمپ میں ہی رہنا، میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اتنے پیار سے تو امی بھی نہیں اٹھاتی جیسے یہ روٹی دیتے ہیں۔ موت کو اتنی قریب سے دیکھا ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے کیونکہ ایلیگل گیا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہوا، ادھر عزت کی کمائی واپس آ گئے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے ساتھ آج زاہد بھائی ہیں، یہ ترکی میں پہلے بھی رہ کے آئے ہوئے ہیں، بلکہ ہم ایک ہی محلے میں رہے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے سوچا زاہد بھائی کے ساتھ تھوڑا انٹرویو کیا جائے، گپ شپ کی جائے اور زاہد بھائی کا ایکسپیرینس جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو زاہد بھائی پہلے تو اپنے بارے میں تھوڑا کچھ بتائیں گے؟ السلام علیکم عادل، میرا نام ہے رانا زاہد ترکی والا آفیشیل آج کل جو ہے، اور ترکی میں نام تھا حافظ زاہد کے نام سے لوگ مجھے جانتے ہیں، اور ترکی میں تقریباً 3 سال رہا ہوں، اور تقریباً 1.5 سال سے میں واپس آ چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ ترکی میں گئے تو فرسٹ ٹائم آپ نے کیا جاب کی؟ جب میں ترکی گیا تو سب سے پہلے جو میری جاب تھی وہ ڈلیوری بوائے کی تھی۔ میں رائڈر تھا ادھر، اور پانی جیسے ادھر نیسلے کی بوتل ہے 19 لیٹر کی وہ دیتا تھا، اور گیس کے سلنڈر وغیرہ، یہ کام تھا پہلا۔ تو اس کے بعد کوئی دوسرا کون سا کام کیا کوئی؟ اس کے بعد پھر میں نے اپنا گودام شروع کیا ادھر، جسے ڈیپو بولتے ہیں ترکی میں، اور اسکریپ کا کام تھا میرا۔ میں ایلیگل تھا، لیکن اس کے باوجود ایک لیگل تھی ایک لڑکی، اس کے نام پہ میں نے سارا کچھ کیا، وہ میری کفیل بنی، اور میں نے یہ کام شروع کیا ادھر۔ تو لاسٹ ٹائم جو آپ ترکی میں رہے ہو، مطلب 3 سال کے دوران لاسٹ جاب کیا کرتے رہے ہو؟ جاب بھی کرتے رہے یا وہ بزنس ہی؟ وہ بزنس بھی تھا ساتھ میرے، اور جاب کی ہے پھر میں نے وہی والی، لیکن پہلے میں سنائی محلے میں تھا، اس کے بعد میں گلتپے میں آ گیا، اور تھوائر محلے میں، تو ادھر بھی میرا وہی ڈلیوری بوائے والا کام تھا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ والا کام میں نے اپنے ساتھ ساتھ کئی پاکستانیوں کو سکھایا، اور کیونکہ گلی گلی کا پتہ ہونا چاہیے، محلے محلے کا پتہ، اور مجھے لاہور کا نہیں پتہ، مجھے استانبول کی گلی گلی کا پتہ ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ ایک جگہ پہ رہتے ہو، میں خود آج کل ڈلیوری بوائے کا کام کرتا ہوں، جب آپ اپنے جگہ کا نام بھی پتہ ہو، جہاں رہ رہے ہو تو آگے پیچھے کا خود ہی پتہ لگ جاتا ہے، اور ڈلیوری بوائے کے کام میں زاہد بھائی گلی محلے کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور وہاں کے ترک وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، ہم ادھر کے پیدائشی ہیں، رہائشی ہیں، بائی برتھ ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ آپ کو یہاں تک کہ میر دیوان سکاک کا پتہ ہوتا ہے؟ میر دیوان سکاک اسے کہتے ہیں جو سیڑھیوں والی گلی ہوتی ہے، پہاڑی سے ایسے سیڑھی اتر رہی ہے وہ بھی گلی کی نہیں جاتی ہے، اور مجھے اس کا بھی پتہ ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، یہ میں نے کام کیا ہے۔ اس بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں، کیونکہ میرا بھی مائنڈ تقریباً ایسے ہی ہے، مجھے بھی گلی محلوں کا اچھے سے آئیڈیا ہے کہ کس جگہ سے گزرنا ہے، کدھر سے واپس آنا ہے۔ تو یہ ڈلیوری بوائے کے کام میں نا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو جہاں بھی رہ رہے ہو آس پاس گلی محلے کے نام تک پتہ ہونے چاہیے، پھر محلوں کے پتہ ہونا چاہیے اگر آپ نے ڈلیوری بوائے کے کام کے لیے جانا ہے۔ تو زاہد بھائی آپ کا پھر پاکستان کیسے آنا ہوا؟ پاکستان یار، چونکہ میں ایلیگل تھا تو واپس آنا بنتا تھا۔ اس سے پہلے تک ترکی کی جو پولیس تھی نا وہ پکڑتی نہیں تھی، اور استانبول میں ہمیں زیادہ سربستی یعنی کہ رعایت تھی، تو کوئی بھی نہیں تھا پکڑتا۔ بس ایسے ہی ایک دن میں آ رہا تھا واپسی، تو روٹین میں جیسے وہ پولیس والے سلام کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، اور میں جم سے آ رہا تھا، ایک ہاتھ میں دودھ ایک ہاتھ میں کھجوریں، جناب بڑا میں پہلوان تھا، تو واپس آ رہا تو پولیس نے پکڑ لیا، جی ایک سائن کرنے ہیں، ایک سائن کرنے گیا، انہوں نے کہا صبح چلے جانا، میں نے کہا صبح چلا جاؤں گا۔ حالانکہ ایک ترک لڑکی بھی تھی، وہ بھی میرے پیچھے آئی، لیکن انہوں نے کوئی پلان ہی ایسا ترتیب دیا ہوا تھا کہ پھر ایک شہر سے دوسرے شہر، پھر تیسرے، یہاں تک کہ مجھے 2500 کلومیٹر دور لے جایا گیا استانبول سے۔ پھر ادھر رہا، ترجمانی کی میں نے پاکستانیوں کی 2 ماہ جیل میں، اور میں بھی قیدی تھا لیکن ترجمان تھا، پھر ڈیپورٹ ہو گیا۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا بتایا کہ ترجمانی وغیرہ کی۔ ویسے میں نے دیکھا ہے کہ جن کو ترکی اچھی آتی ہے ادھر پہ اکثر جو کیمپوں وغیرہ میں جاتے ہیں لڑکے، ان کو ترجمانی کا کام دے دیتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہو گے؟ جیسے لوگ اکثر ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ یار پولیس نے پکڑ لیا، اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کوئی ایسا کوئی سٹوری ہے جو شیئر کر سکو؟ جی ہے، پولیس جب ادھر کی پکڑتی ہے نا عادل بھائی، تو سب سے بڑی بات ہے وہ مارتی نہیں، تنگ نہیں کرتی، گالی نہیں دیتی، اور آرام سے بڑی عزت آپ کو ملتی ہے۔ اور کیمپ میں رہا ہوں تو ادھر 4 ہم ترجمان سلیکٹ ہوئے تھے، لیکن 4 ترجمانوں میں سے جو فائنل ہوا تھا وہ میرا ہوا تھا۔ گو کہ میں 3 سال رہا، اور میں نے ترکی زبان جو ہے نا تلفظ کے ساتھ سیکھی ہے، تو یہ میرا شوق تھا۔ تو اس کے علاوہ جناب ادھر جب جیل گئے تو ایک بڑا مسئلہ تھا کہ ہمیں قید کر دیا گیا پاکستانیوں کو، تو پاکستانی ادھر جھگڑا بڑا کرتے تھے، یہ جو ایک بڑی عجیب چیز تھی۔ چلے یہ آپ نے اچھا بتایا، تو کچھ اس میں بھی بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی آپس میں کیوں مطلب جھگڑا کرتے ہیں؟ ویسے بھی نارملی بھی گلی محلے میں بھی کرتے رہتے ہیں،
जेल में जाके भी मतलब क्यों खास, क्या वजह है, कोई बताओ ताकि देखने वाले इससे बाज आ जाए। सही, आराम की गरामी लड़ती है, ये एक पंजाबी की कहावत है कि आराम की गरानी लड़ती है। उधर वो खाना देते थे हमें सुबह दोपहर शाम, और 3 टाइम जगा के आके तरले मिन्नतें समाजतें करके कि खाना खा लो, ठीक है। तो हम उधर जनाब झगड़ते क्यों थे कि सारा दिन फारग बैठे रहना, दिमाग घूमते रहना कि हम पकड़े गए, हम वापस चले जाएंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि जो इस्तांबुल रहा था पाकिस्तान में वो किसी काम का नहीं है। तो इस तरह झगड़े होते थे, और मैं जब झगड़ा होना मुझे बुला लेना उन्होंने, ये क्या कह रहा है मैंने बताना, ये क्या कह रहा है मैंने बताना, और मैंने अपनी ज़ुबान में कहना इनसे माफ़ी मांग लो, आपस में सुलह कर लो। उन्होंने कहना ओ नहीं आफत जी जितनी मर्जी मार पाइए, मैं इन्हू नहीं छड़ना। उसने कहना क्या कहा इसने, मैंने इसे कहा कि वो कह रहा है कि ठीक है हम कर लेते। उसने कहना नहीं नहीं, चाहे वो तुरक था लेकिन फेस इंप्रेशन बॉडी लैंग्वेज, उन्होंने कहा आप झूठ बोल रहे हो, इसने क्या कहा वो बताओ, नहीं तो तुम्हें भी मार पड़ेगी। अब मैं इसकी क्या तर्जमा नहीं करूँ कि मैनू जो जितनी मर्जी मार पाइए मैं इन्हू नहीं छड़ना, अब इसका क्या तर्जमा करूँ। तो ये है कि फिर बड़ी बड़ी मार भी खाते थे, और मुझे दुख होता था साथ के यार मेरे भाई हैं। तो ये वजह है उनके लड़ने की कि फारग होते हैं, और ये जब ये सोचते हैं कि करने को कुछ नहीं तो फिर झगड़ा ही होता है उधर। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा जाहिद भाई कि एहतियात करनी चाहिए, बजाय इसके कि खुद लड़ते रहो, आप एक गलत मैसेज दे रहे हो। एक तो आप इलीगल भी जाते हो, फिर इलीगल पकड़े भी गए हो, फिर जेल में आने के बाद भी लड़ाई झगड़े कर रहे हो, तो मतलब एक अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि तुर्किश लोग हमें वैसे भी ओवरऑल बहुत इज्जत देते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल, तुर्किश हमें इज्जत देते हैं, बड़ी इज्जत की उन्होंने। एक पठान था उधर, वो तो कह रहा था मैंने कैंप में ही रहना, मैंने कहा क्यों, कहता है इतने प्यार से तो अम्मी भी नहीं उठाती जैसे ये रोटी देते हैं, ठीक है, और 3 टाइम तरले मिन्नतें करके, इतना अच्छा खाना, अंडे फ्रूट अलग से। तो ये सारे मामला थे। एक छोटा सा वाकया ज़हन में आ गया, एक जगह थी मेरी, ये जो हाथ है ना मेरी हथेली, ये 9 इंच की है, 8 इंच जगह थी ऐसे, और 15 इंच इस तरह लंबाई में थी। यकीन कीजिएगा एक 6 फीट का नौजवान उधर से भाग गया था, ठीक है, और मैं सोया हुआ, उन्होंने आके दरवाज़ा खड़काया, उधर मुझे आके हाफिज़ हाफिज़, मैंने कहा क्या हुआ, एक बंदा कम हो गया, जल्दी करो, उठो अपने बंदे इकट्ठे करो। मैंने किए तो वाकई एक नहीं 2 कम थे, 2 बंदे। वो सर पकड़ के बैठ गए कि निकला कैसे, इधर कैमरा पीछे किया ये वो, और जहाँ से वो भागे हैं प्लास्टिक के जूते थे जनाब, -40 डिग्री, 40 दर्जा हरारत माइनस था, भागे, और आधे घंटे बाद खुद ही कहते हैं हमें पकड़ लो। 40 दर्जा हरारत माइनस हो, तो भाग के जब पकड़ के लाए, उन्होंने कहा हम इन्हें मारना है। मैंने कहा मारे नहीं प्लीज़। उन्होंने कहा फिर इनसे पूछो कैसे भागे, फिर बताया, फिर उन्होंने कहा किसने इनकी मदद की, या फिर सारा, फिर मार तो उन्हें पड़ी, लेकिन वो उन्होंने कहा कि बीज यू सना इचन बुनु अनुतमी जैम, 100 साल तक हम ये नहीं भूलेंगे कि इतनी जगह से 6 फीट का नौजवान और 2 भाग गए। तो उन्होंने कहा यार बड़ा दिल है आप लोगों का। तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तानियों की इज्जत है उधर, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए मैं भी बोल रहा हूँ कि ये इज़्ज़त का मामला जो है ना बहुत ज़रूरी है, कि यार ठीक है हम रह रहे हैं, बेशक जैसे भी चलेगा, इज़्ज़त जो है ना वो नहीं ख़राब होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इज़्ज़त करते हैं पाकिस्तानियों की, मैं खुद देखा है। तो जाहिद भाई कितनी देर कैंप में रहे आप टोटल? कैंप में तकरीबन 2 माह मैं रहा हूँ, और मेरे साथ जो मेरे वाली बैरक कह लें उसे, 65 लोग थे हम, और कुछ अफ़गानी थे जो फ़ारसी वान थे, मुझे फ़ारसी तो नहीं थी आती, लेकिन बाकी मेरे साथ सारे पाकिस्तानी थे, पठान भी थे कुछ, तो मैंने उनकी तर्जुमा नहीं किया। ये हम 65 लोग थे, और 45 मेरे साथ वापस आए। ठीक है, तो रिपोर्ट होने के बाद जब पाकिस्तान आया, कोई FI वगैरह तंग भी करती है? जी हुजूर वाला, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी हमें। बाई एयर जो तकरीबन 15 से 18 दिन का सफ़र मैं करके गया था, मौत को करीब से देख के, वो उन्होंने ठीक 4.5 घंटे में पूरा करवा दिया। इस्तांबुल से उड़े और इस्लामाबाद ठीक 4.5 पौने 5 घंटे में टायर ज़मीन को लग गए थे। अच्छा, जैसे ही हम इधर आए, रास्ते में उन्होंने खाना बड़ी इज़्ज़त दी यार, ऐसे ही बंदा कहे। तो जब हम इधर आए हैं इस्लामाबाद आए हैं, तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा बीज गिदलम, उसने कहा नहीं बिलगी सी बार हैं। मैंने कहा क्या बिलगी, या मैं जाने तो कह रही है नहीं। जैसे ही बाहर निकले हैं जनाब, एक काले कोट वाला हाथ में फाइलें, इस तरफ आ जाएं, इस तरफ। मैंने कहा इस तरफ खाना पका हुआ है, इस तरफ आ जाएं, हैं। तो वो जनाब इस तरफ कर लिया, अलग कर लिया, हाँ जी। वही जैसे यूनान भी जाए ना, पकड़े जाएँ, तो यूनानियों को पता है कि मंडी, बहावलदीन और गुजरात, ये पता नहीं कौन सी जगह, इनका नाम यूनानियों को भी आता है। वो कहते हैं मंडी वाले कौन से हैं, इधर मंडी हैं, गुजरात। तो इधर भी ऐसे ही था, मंडी वाले कौन से हैं, इधर हो जाओ, गुजरात वाले कौन से, इधर हो जाओ। अब मैं गुजरात वाला अकेले, इधर आ जाओ। तो उन्होंने रात रखा, फिर ले गए उधर, गुजरात वाला ले आए। गुजरात वाला एक थाना था, उधर रात रहे।
एक रात सेंट्रल जेल में रहे भाईजान, और बड़ी ज़लीलो ख्वारी, जैसे पता नहीं पूरी दुनिया के हम ही मुजरम हैं, हमने कोई जुर्म किया हुआ है सबसे बड़ा, और ये सारी सूरत हाल थी। जलील करके उन्होंने छोड़ा, लेकिन ज़मानत पे रिहा किया। और अभी हम तो भूल गए हुए हैं इस किस्से को। ये जो मेरे दोस्त हैं इमरान साहब, ये अभी तरीक़े भुगत के आए हैं, ये इश्तिहारी करार पाए हैं। किस वजह से इश्तिहारी? ये समझ ही नहीं आई, ना ही से पता है कि हम तो ज़मानतें करवा के फारग हो चुके हैं, लेकिन इसका कोई काम अधूरा रह गया था जो कि पूरा नहीं हुआ। और जनाब ये पिछले हफ्ते उधर गए हुए थे जहाँ नवाज शरीफ साहब रहे हैं, अडयाला में हैं। तो ये तो सूरत हाल है, बड़ी जलालत है जाने की भी और वापसी आने की भी। चलो ये तो हो गया, जो भी है होता रहता है। तो ये बताओ आजकल आप क्या कर रहे हो पाकिस्तान में जाकर? आजकल मैं इधर पाकिस्तान में आया हूँ, तो पिछले कोई 4-5 माह से मैंने रेहान फाउंडेशन में फेलोशिप पे काम कर रहा हूँ। मैं रेहान अल्लाह वाला साहब के साथ होता हूँ, उनका पर्सनल असिस्टेंट हूँ, और एक इंटरव्यूअर भी हूँ। मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ और उनके साथ होता हूँ। और एक मैंने हेल्प सेंटर बनाया जो कि सबसे अहम चीज़ है। हेल्प सेंटर कौन सा? रेहान हेल्प सेंटर के नाम से रेहान अल्लाह वाला साहब ने हेल्प सेंटर अपना बनाया हुआ था। मैंने आके उनसे गुजारिश की कि मैं पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना चाहता हूँ जो इलीगल जाते हैं। तो उन्होंने कहा क्या करोगे? मैंने कहा उनको अवेयरनेस दूंगा, उनको उधर रहते हुए कुछ ऐसे काम सिखाऊंगा कि वो पाकिस्तान आए और आके अपना इज़्ज़त का रोज़गार कमाएं। तो इस हवाले से एक रेहान हेल्प सेंटर है, वो मैं चला रहा हूँ। अब किसी भी पाकिस्तानी को तुर्की में रहते हुए जो इलीगल है, लीगल बंदे को मेरी ज़रूरत नहीं है, जो इलीगल हैं उनको किसी भी तरह की ज़रूरत हो, चाहे तर्जुमानी करवानी हो, आपको पता होगा उधर तो दवाई भी नहीं मिलती। और लोग अक्सर मेडिकल स्टोर पे जाके मुझे फ़ोन कर रहे होते हैं, हाफ़ जी ज़रा गाल करे आज तो ये होता है। तो कई कहते हैं हाफ़ जी ये हमें खाना नहीं दे रहा है, इसे ज़रा कहें खाना ही खिला दे, मैं बात करवाऊँ। तो ये काम उधर भी करता था, इधर भी कर रहा हूँ मैं, तो हेल्प सेंटर चला रहा हूँ। तो लोग अक्सर मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं जी हमें वीज़ा लगवा दें। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से बता दूं, मैं वीज़े नहीं लगवाता। मैं सिर्फ जो इलीगल उधर फंस गए हैं ना, उनकी किसी भी तरह की मदद करता हूं कि वो किसी तरह वापस आएँ और अपने मुल्क में काम करें। चलिए जाहिद भाई, ये तो आपने बहुत अच्छी बात शेयर किया है। मतलब सीधे अल्फाज में देखा जाए अक्सर लोगों को ट्रांसलेशन के लिए भी ज़रूरत पड़ती रहती है तुर्किश। तो जो भी देखने वाले हैं पाकिस्तान में भी अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो ट्रांसलेशन के लिए आप जाओगे? जी जी, यही तो काम कर रहे हैं, ट्रांसलेटर हूँ मैं उधर। तो जाहिद भाई का नंबर भी मैं दे दूँ फिर? जी जी, मैं नंबर बोल देता हूँ अपना। ठीक है, बोल। मेरा नंबर है 00905464771625। ये मेरा नंबर है तुर्की का, और इस पे व्हाट्सअप बना हुआ है। और एक और गुजारिश है आपके, क्योंकि देखने वाले तुर्की में भी हैं नौजवान, मैं उनसे यही कहूँगा कि गमों के साए और अकरम राई के गाने सुनने की बजाय ना, वो जो मोबाइल है ना उसका इस्तेमाल करें और अपनी ज़ुबान को बेहतर करें। जैसे आपने भी सीखी, मैंने भी सीखी, तो हमारी फुफ्फो तो नहीं ना उधर रहती, तो इसी तरह ही फिर हमने सीखी, ज़ुबान सीखें। जब तक आप चीज़ों का सही वे में इस्तेमाल नहीं करोगे ना, आप कामयाब नहीं होने वाले। तो जाहिद भाई आखिरी लास्ट में देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहोगे जो इलीगल जाने का अब आज भी सोचते हैं, इस टाइम में भी उनको कोई मैसेज देना चाहोगे इलीगल वालों को? देखें, जो तो जा चुके हैं ना उन्हें तो पता है कि इलीगल कैसा रास्ता है। मौत को इतनी करीब से देखा है जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, और ये कोई किताबी बात नहीं है, मैंने देखा है क्योंकि इलीगल गया था। लेकिन ये है कि अल्लाह का फजल हुआ, उधर इज़्ज़त की कमाई वापस आ गई। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैंने जैसे बता चुका कि पहले हमें नहीं थे पकड़ते, जब कहते भी थे ना पकड़ लो, वो कहते थे नहीं आप भाई हो, लेकिन अब पकड़ रहे हैं। अब वैसा काम नहीं, अब 2-3 लाख रुपया लगा के जाते हो और जाके पकड़े जाओ तो कोई फ़ायदा ही नहीं, वो ज़ाया हो जाता है। तो गुजारिश ये है कि कोई भी बंदा इलीगल रास्ता ना इख्तियार करे। मेरे नज़दीक 1 लाख रुपया लगता है सिर्फ टोटल, यानी 17,000 का वीज़ा है, 17,000 रुपये का वीज़ा है। आप वो लें और जितनी मर्ज़ी महंगी टिकट कर लें, जितनी मर्ज़ी महंगी हैं, 1 लाख रुपये नहीं लगता, आप इस्तांबुल पहुंच जाते हो। और इलीगल जाओ तो कितने पैसे लगते हैं आप ही बताएं जी? मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन यही सुना है कोई 2.5 लाख भी लगा के गया बंदा, कोई 4 लाख भी, मतलब मुख्तलिफ जो जिसके साथ फंसा हुआ है वो। और लीगल जाएँ तो 1 लाख लगता है, और इलीगल जाएँ तो 2-3 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। इसमें मैं भी आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, इसमें यही कहना चाहूँगा, मैं 2017 में फर्स्ट टाइम गया हूँ, मेरे ख्याल से कोई 1.5 लाख खर्चा भी नहीं आया। ये देखे ना, और मेरे बाद कुछ दोस्त भी आए हैं इलीगल, वो माशाल्लाह 3.5-3 लाख लगा के गए। बिल्कुल। तो ज़रूरत क्या है यार इस तरह के काम करने की? देखें, जैसा रास्ता होगा मंजिल भी वैसी ही होगी। तो आगाज़ अच्छा नहीं तो अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है? तो यही गुजारिश है, यही बात है मेरी कि देखें ना, हमें अवेयरनेस नहीं, हमें आगाही नहीं, लाशऊरी है। अभी देखें हमारा इंटरव्यू चला और लोग आगे से गुजर, पता भी है कैमरा है, मोबाइल है, हालांकि उधर ऐसी चीज़ें नहीं देखने में आई, हर चीज़ का एहतराम है। वहाँ तुर्की में मैंने देखा 3 बंदे जहाँ एक जगह खड़े हो जाए ना, लाइन शुरू हो जाती है उधर से। ऐसे ही हैं
दो हैं तो आपस में बात करेंगे, जहाँ 3 हो जाएंगे तो लाइन शुरू हो जाएगी। इधर 1000 वो खड़ा हो और पीछे से आके उसने सबसे आगे जाके बिल भी जमा करवाना है और वैक्सीन लगवाने गया हूँ तो वो भी यही सीन है। भाई इस चीज़ में मैंने भी नोट किया है जाहिद भाई कि कौम हमारी महजब नहीं ना है, मुअज़्ज़ब नहीं। शऊर नहीं है बिल्कुल भी। शऊरी की बहुत ज़्यादा, तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी कौम को ना। हाँ जी, तालीम भी है और एक कहीं मैंने पढ़ा था कि तालीम इंसान को अफसर नहीं बल्कि इंसान बनाती है और हमें इंसान बनने की ज़रूरत है। आदम का जिक्र है लेकिन इंसान बनना ज़रूरी है। आदमी तो बड़े हैं लेकिन आदमियों में इंसान कितने हैं, इंसान होना वो बड़ी ज़रूरी है। ये तो वो गब्बर सिंह वाली किसी ने पैरोडी की हुई, उसने पूछा कितने आदमी थे, उसने कहा आदमी तो 5 थे लेकिन इंसान एक ही था। तो ये बात है ना कि इंसान होना चाहिए। तो गुजारिश ये है, एंड पे यही कहूँगा कि अपने आप को, अपनी जान को जोखिम में ना डालें और लीगल रास्ता इख्तियार करें। वीज़ा मिल भी जाता है और आपकी उधर इज्जत भी होगी। इलीगल जाएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। चलें दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।